A very good evening to all of you and a special pranam to all elders. Thank you for joining us today. आज की दुनिया थोड़ी अलग, थोड़ी अजीब है, पर अगर ध्यान से देखें तो अब ज्यादा खूबसूरत है। बात नजरिए की है। I recently was talking to a friend who was quite upset with the current situation of restricted living. लॉकडाउन नहीं कह सकते क्योंकि अब हम सेल्फ रेगुलेशन मोड में है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फोर्स्ड मोड में नहीं. So coming back to my friend, he could only find problems where none existed and ended up creating them because he was in such a mindset. A few days later, I chanced to speak with one of my dad's friend. Uncle lives next door to his daughter's family and I've always known him to be extremely independent. Uncle is over 75 years of age and very active. However, in today's time, he's forced to live a restrictive and dependent life as stepping out of home is still not preferred option, especially for the elderly. Yet, when I spoke to Uncle, he was in such high spirits that I am smiling even now thinking of him. Uncle shared that the way everyone around him, his daughter's family, his neighbors, the society guard, are so willing to help him that he is feeling loved and taken care of. He, of course, misses being independent. However, the love and care has made him happier that no sadness can touch him. In both these examples, the person didn't have it all. However, found happiness in what they had. Again, baat nazariye ki hai. We at Harikrit also are aiming to provide that one reason for our elders to feel happy from within and feel that someone cares. हरिकृत एनजीओ पिछले 17 साल से बुजुर्गों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाने के लिए कार्यरत है. एनजीओ की फाउंडर सेक्रेटरी जेवी मनीषा जी इस बात के लिए कई बुद्धिजीवी और डिसीजन मेकर्स के साथ डायलॉग में रही हैं और ये वेबिनार सीरीज का जन्म वहीं से हुआ है. In fact, good to have you, Manisha ji, today with us in this webinar. आप हमेशा साथ में रहती हैं, कुछ भी वेबिनार या कोई भी एक्टिविटीज एनजीओ से रिलेटेड रहती है, गाइड करती हैं, and that is always such an inspiration for all of us. This series is on the various aspects that impact us, particularly our elders in their daily life. Especially in times of COVID-19, extending the hand and saying, I care, has become even more important. So every alternate Saturday, we come up with topics that will add value and answer your queries. Yes, all our discussions have elders as the center point. However, courtesy our experts, all the topics will have takeaways for everyone else too. It is said that assurance is a big insurance. However, having the right insurance is a big assurance too. Today, we have amongst us Mr. Neeraj Juneja, who is a finance expert, and today he will talk about certain parts of insurance with special focus on health insurance. Neeraj ji is the founder director of NJ Advisors, which deals with multitude of tax and saving related services from income tax, life and health insurance, mutual funds, and GST. NJ Advisors is a one-stop shop for all small and medium business and families for their financial planning. He is a qualified lawyer with an MBA degree in finance. What an amazing combination. He has over 400 clients, and just in life insurance policies, he has done over 1,000 of them. His work is his passion
and ensures that each of his clients have specific customized portfolios based on needs and pocket of each. And that is what makes him stand apart from all others. He has a team of over 21 qualified professionals who work under him to ensure timely and personalized service. As you all are aware, insurance is a vast field. So we have picked certain areas to cover today. In case you have specific questions, you can ask the expert at the end of the session today. So let me not keep you from getting to know more about insurance. Over to our speaker, the finance expert, Neeraj ji. But before we move to Neeraj ji, this is something I would love to share, which I found recently and I thought was perfect fit for today's session. अमिताभ बच्चन जी saying, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है और अनफॉर्चुनेटली कोरोना भी है. तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम्हें कोरोना हो जाए तो, एंड जिस पे शशि कपूर जी रिस्पॉन्ड्स, मेरे पास बीमा है. So I thought that was very interesting, and on that note, the floor is all yours, Neeraj ji. Thank you, Rashi. Thank you, Manisha ji. Yeah, good evening, elders, and pranam to elders, and good evening to friends. सभी का प्रणाम, सबका आशीर्वाद. मेरा नाम नीरज जुनेजा है. आप सबके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ और बहुत से परिवारों के साथ जुड़ा हूँ और मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ. आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे. इंश्योरेंस इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट. इसमें कितनी तरह का इंश्योरेंस होता है. इंश्योरेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आज कोरोना में हम इंश्योरेंस के बारे में सोचें और बहुत टेंशन होती है. इंश्योरेंस क्यों चाहिए? सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है क्योंकि जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसा कि हम बड़े हुए, हमें किसी ने समझाया नहीं. हमारे देश में इंश्योरेंस के बारे में वो जागरूकता नहीं थी. इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस होता क्या है. सिर्फ यही होता था इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए एक एटीसी की कि हाँ जी रिबेट चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. सॉरी, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाया करती हैं, हो जाती हैं, कनेक्शन है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं. मैंने आपको एक्सेस दिया है, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जी. इज इट विजिबल राशि? जी बिल्कुल, इट इज विजिबल. आप इसको हाँ प्रेजेंटेशन मोड में कर लीजिए. हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट. हाँ, सॉरी फॉर द टेक्निकल. एक्चुअली हम लोग फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, टेक्निकली उतने साउंड नहीं है. इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि इंश्योरेंस क्या है. इंश्योरेंस एक तरह का एक अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है विद आवर इंश्योरेंस कंपनी और ए फर्म व्हिच यू पे देम ए रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम और मनी, जिससे कि वो आपको एक कवर देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी और अनफॉर्चुनेट इवेंट हो. फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है मेरी कार के साथ और ए डैमेज टू ए प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैंने लिया है, मैं बीमार हो जाता हूँ फॉर अनफॉर्चुनेट इलनेस, इंश्योरेंस कंपनी कवर्स that unfortunate event that happens in my life. इंश्योरेंस कंपनी हमें ये एक तरह से प्रॉमिस करती है कि हाँ कि मैंने ये आपको एक कवर दिया था, आपके साथ जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है हम उसको कवर करेंगे. दैट्स व्हाई वी नीड इंश्योरेंस. जैसे कि पेरेंट्स की तरह हमारे को गार्ड करता है इंश्योरेंस कंपनी. हमारे पेरेंट्स की जैसे भी कोई बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी एक तरह का इंश्योरेंस है कि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी मुझे अनफॉर्चुनेट कुछ भी होगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे गार्ड कर पाएंगे. अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाई इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप सब जानते हैं अमाउंट सेव एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि हम इतने सालों से पड़े हुए हैं इसको सुनकर कि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी हमने पे किया वो आज हमारे डिफिकल्ट टाइम में बहुत काम आ रहा है. जैसे कि लॉकडाउन में बहुत लोगों की इनकम, बहुत लोगों का एक तरह से कहेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो हम उस अमाउंट को जो हमने सेव किया उसको हम एज ए लोन या उसको सरेंडर करके हम अपनी लाइवलीहुड को या हम अपने घर खर्च को चला सकते हैं. और इन एनी केस ऑफ मिस हैपनिंग, इंश्योरेंस कंपनी हमें वो इंस्टेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस, जैसे कि अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि क्रिटिकल इलनेस होगी, उसके क्लेम के रूप में, और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के रूप में. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस जो मेरे इन डिफरेंट लॉसेस को कवर करती है. डेली अलाउंस बेनिफिट दे सकती है, डेथ बेनिफिट इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ ए ब्रेड अर्नर,
of the family. Or in case of car accident, insurance company will bear the loss of life as well as vehicle damage. तो इससे ये हमें पता लगता है कि why insurance is important, कि अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे लिए एक तरह से प्रोटेक्टर की तरह वहां पर खड़ी हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल कोई नीड अराइज होती है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में हम कुछ सेविंग प्लान्स करते हैं। वो आजकल कोविड में 4 महीने से जो हमें लोगों के घरों में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है तो लाइफ इंश्योरेंस ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां लोगों को हमने लोन्स करवाया है या सरेंडर किया है, तो सो दैट कुछ सालों में सेव किया तो वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। नाउ कितनी तरह के इंश्योरेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस, जस्ट लाइक LIC मेन हमारे इसमें नाम ICICI लोम्बार्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस जो आज सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन। कल गवर्नमेंट ने एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली फॉर कोविड लॉन्च की है, इसका नाम है कोरोना कवच, जो स्पेशली फॉर कोरोना पेशेंट्स या कोरोना की डिजीज को कवर करने के लिए उन्होंने कल एक लॉन्च की है, जिसमें आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर उन्होंने दिया है विद ए मिनिमम प्रीमियम, विच प्रीमियम इज स्टार्ट फॉर इंडिविजुअल इज 400 रुपीज to 4,516 रुपीज फॉर 5 लाख ऑफ कवर, जिसमें आप हर तरीके का कवर कोरोना से रिलेटेड डिजीज जैसे PPE किट के एक्सपेंसेस के लिए हमें एक कुछ इंश्योरेंस कंपनीज मना कर रही थी, लेकिन इसमें जो IRDA ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसमें हर तरीके का कवर, एंड इट इज 100% कैशलेस। और अगर आपके कहीं भी हॉस्पिटलाइज, अगर आप पूरे इंडिया में कहीं हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं और आपको हॉस्पिटल नहीं मिलता, और मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा कोरोना कवच को। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस को हम जानते हैं कि आपको अगर हॉस्पिटल में रूम नहीं मिलता और आप घर पर ट्रीट करते हैं अपने आप को, तो कोरोना कवच पॉलिसी में आपको जो ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं वो सब रीइंबर्स किए जाए। नेक्स्ट इज व्हीकल इंश्योरेंस, वी आर वेरी वेल अवेयर, कार इंश्योरेंस जिसे कहते हैं हम गाड़ी लेते हैं, फायर इंश्योरेंस फॉर आवर फैक्ट्री, बिजनेस प्रेमाइसेस और फॉर आवर रेजिडेंस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, थेफ्ट इंश्योरेंस फॉर आवर शोरूम, बिजनेस प्रेमाइसेस और फॉर आवर होम। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज सेम, जब हम कुछ घर लेते हैं या कुछ हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वेदर इट इज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, वी हैव टू, इट इज मैंडेटरी फॉर अस, if we are taking a loan from bank, it is mandatory for us to buy this property insurance. There are a different kind of insurance that is called liability insurance, just to take care of your liabilities. And it is there is a different kind of insurance which is very popular in foreign countries. Now it is becoming popular in India, that is called pet insurance. Because in India also people love their pets, so there is a new kind of insurance coming up, and it is very much admired by the people that their pets are now insured. Cyber insurance, cyber insurance is for any kind of cyber crime. सपोज मैंने अपना डेबिट कार्ड या हम लोगों ने अपना, जब भी हम ये कैब्स बुक करा रहे थे, हमने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को परमानेंटली उस पर डाल रखा है कि हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाए। क्रेडिट कार्ड्स हैं, गूगल पे के लिए हमने कर रखा है, कोई भी हमारे ऑटो डेबिट है, उसमें कोई फ्रॉड होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर इंश्योरेंस है। प्लस साइबर इंश्योरेंस इज ए वेरी वास्ट फील्ड। जब आप इंटरनेशनली कोई बिजनेस करते हैं, सपोज आप यूरोपियन कंट्रीज से या किसी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं IT से रिलेटेड, इट इज मैंडेटरी फॉर योर कंपनी टू टेक साइबर इंश्योरेंस, which is a very different kind of field, which is very common in Eastern countries, but becoming common in India. And critical illness insurance is a different vertical. अगर मुझे क्रिटिकल इलनेस में हम इसे कहें कि जैसे मुझे सपोज अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है, मुझे स्ट्रोक आ जाता है या मुझे कैंसर डिटेक्ट होता है, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो मेरे एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी हैं, तो उनको अगर रेस्ट बता दिया गया या हम कीमो ले रहे हैं, कीमो के बाद मुझे 2 महीने घर रहना है और उसके लिए मुझे कुछ खर्चा चाहिए, तो क्रिटिकल इलनेस एक टाइप का इंश्योरेंस है जो मुझे कवर देता है। वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर कर देता है, सो दैट मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस
मैं उससे पे कर सकूं, जैसे कि मुझे एक नर्सिंग स्टाफ रखना है, या मुझे आना जाना है, या मुझे ड्रेसिंग करनी, या मुझे एक टिपिकल डाइट लेनी है, तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कराने से, जैसे कि कैंसर केयर कवर एक पॉलिसी है, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कवर, दे पे सर्टेन अमाउंट। आप चाहे उसको अपने घर खर्च में यूज करें, आप रेंट नहीं दे पा रहे आपको, तो वो एक सर्टेन अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इलनेस कवर। जो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस, वी टेक ट्रैवल इंश्योरेंस व्हेन वी ट्रैवल, ये आप कई बार फ्लाइट टिकट्स कराते हैं, उसमें भी इंक्लूडेड होती है आपकी टिकट। जब आप बुक कराते हो नीचे लिखा होता है यू वांट टू, अगर आपका बैगेज गुम हो गया, या मैं अब्रॉड ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बहुत हेल्प करती है। और भी वर्टिकल्स हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये मेजर हैं जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, हम इनसे मिलते हैं, लेकिन सभी हम इंश्योरेंस यूज नहीं करते। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम ये इंश्योरेंसेस लेते हैं और इसको पे करते हैं। आज हम टिपिकली जो बात करने के लिए मिले हैं हम सब लोग, स्पेशली मेरे एल्डर्स, रिस्पेक्टफुल एल्डर्स, तो आज हम बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, और स्पेशली कोरोना से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में है, क्या है कोरोना। क्योंकि जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिए थे बिफोर मार्च या जनवरी में, जब चाइना में कोरोना का ये इम्पैक्ट शुरू हुआ, तो वी वर नॉट अवेयर कि वेदर कोविड-19 इज included in our already existing medical plan or not, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो मार्च में आते आते इसने इंडिया को भी, भारत को भी अपनी उसमें ले लिया। तो उसके बाद लोगों ने, लॉकडाउन हुआ, कोविड केसेस आने लगे, शुरू शुरू में लोगों को बहुत दिक्कत आई, कैशलेस नहीं हो रहे थे, रीइंबर्समेंट हो रहे थे, तो बहुत चेंजेस आए इस 4 महीने के दौर में। तो मेरिट्स ऑफ इंश्योरेंस हम ये करेंगे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें नॉर्मली पता है कि कोई भी हमें इलनेस होती है, कुछ भी होता है, एक्सीडेंट केस होता है, तो हमें, लेकिन आज टिपिकली हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कोरोना से रिलेटेड। क्योंकि व्हाट्सएप भी हमारा, और सारा दिन हमारा किसी से भी फोन पे हम बात करते हैं, आप किसी को कॉल भी करते हैं तो पहले कोरोना की कॉलर ट्यून लगती है। तो आजकल हम ये नहीं पूछते आप ठीक है, बोलते हैं कोरोना तो नहीं हुआ। अगर कोई खांसी भी करता है तो कहता है। तो आज हमारे लिए ये बहुत, तो इसलिए आज हम सब आप मिले ही इसीलिए हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम आपसे कोविड-19 से रिलेटेड उसको, सबसे अच्छी बात आईआरडीए में आपको एक बार बता दूं, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ये सब इंश्योरेंस को, जितनी कंपनीज की पॉलिसीज है और उनको रेगुलेट करती है। आईआरडीए ने पहले जो कोरोना था वो 30 डेज वेटिंग पीरियड था अगर आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं। अब इन्होंने कोरोना को 15 डेज लॉक इन पीरियड कर दिया है कि अगर आप कोई नई पॉलिसी परचेज करते हैं तो अगर 15 दिन के ठीक बाद आपको कोरोना होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर पॉलिसी। क्योंकि ये एक तरह का जो वायरस है, ये पहले नहीं था, प्री डिफाइंड नहीं था, ये अभी आया है, तो इसीलिए इसको इन्होंने अब सभी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में इंक्लूड कर दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार मेरी, लोग अपने एजेंट्स को फोन कर रहे थे, यार मेरे को कोरोना हो जाए तो मेरा क्लेम तो मिलेगा ना। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है जो इनिशियली, जिनको अप्रैल मई में कोरोना हुआ, उनको क्लेम्स के लिए रीइंबर्स कराना पड़ा, उनको पहले अपनी जेब से पैसे पे करने पड़े। लेकिन अब इट इज 100% कैशलेस, जो आपकी पॉलिसी की टर्म्स है। जैसे नॉर्मल क्लेम आप लेते हैं ऐसी कोरोना इज इंक्लूडेड। आप नई पॉलिसी आज ले लीजिए 18 को, ठीक 15 दिन, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कोरोना आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। और इसमें एक और बहुत अच्छा इन्होंने किया कि जैसे पहले हॉस्पिटल्स बहुत मनमानी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हॉस्पिटल्स क्या कर रहे थे कि पीपी किट के चार्जेस ले रहे थे जो कि एक्सक्लूडेड थे पहले। तो उससे क्या होता था, सपोज मेरा हॉस्पिटल बिल बना 4 लाख रुपए और उसमें उन्होंने विजिटिंग चार्ज, तो गवर्नमेंट ने फिर उस पर इंटरवीन किया और उन्होंने उस पर चार्जेस की सीलिंग गई। जैसे कि सपोज मेरी फैमिली में कोई एडमिट हुआ तो आईसीयू चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो गवर्नमेंट ने, आईआरडीए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप 12,000 रुपीज से ज्यादा आईसीयू के चार्जेस नहीं ले सकते। तो उससे क्या हो रहा था, उनका मेडिकल का जो इंश्योरेंस का जो कवर था वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था। क्योंकि नॉर्मली हम मेडिकल कवर जो लेते हैं 3 लाख 5 लाख लेते हैं, जो एक ही पेशेंट एग्जॉस्ट कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने एक सीलिंग लगा दी। तो ये बहुत अच्छा मूव है। और दूसरा, पीपीई किट के चार्जेस और जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग चार्ज कर रहे थे, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप ये चार्ज नहीं कर सकते, कोई भी एडमिट होगा आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और
जो चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है और आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो दे आर सो मेनी अदर वे। तो एक टॉप अप प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत कम प्रीमियम में। ये मतलब ये कोरोना के टाइम गवर्नमेंट ने और IRDA ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए ये फैसिलिटीज की है। नेक्स्ट है, अगर एक बहुत अच्छा इसमें किया कि जो 5 लाख से ज्यादा वाले जो पेशेंट्स जिन्होंने ये कवर लिया हुआ है, सॉरी, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं। मतलब जैसे हम नॉर्मल 5 लाख से ज्यादा मीन्स सम एश्योर्ड, या मैंने जो 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी ली हुई है उस पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए, कंसल्टेंसी फी लाइक हेल्थ चेकअप, ये फैसिलिटीज IRDA ने उनको एक्स्ट्रा बोला कि जो हायर जिन्होंने सम एश्योर्ड लिया उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दें। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोविड-19 ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एक्सिस्टिंग पॉलिसीज पे हो गया। अब एक और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है, सपोज मेरी पॉलिसी मई में एक्सपायर हुई और मैंने पॉलिसी को जून में रिन्यू किया। अब उसमें एक नो क्लेम बोनस होता है कि अगर सपोज मैंने उसमें कुछ नहीं लिया तो 50,000 नो क्लेम बोनस ऐड होता है। तो कोरोना टाइम में 50,000 भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोला कि इनको नो क्लेम बोनस ऐड करना है आपको। और जैसे कि अभी कोरोना कवच पॉलिसी आई है 9.5 महीने के लिए आई है, इट मीन्स गवर्नमेंट तैयार है कि 9.5 महीने हमें कोरोना रहेगा इंडिया में, ये हम तैयार हैं। वो पॉलिसी का टर्म ऐसे ही है, 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने। अब मुझे समझ नहीं आया वो 15 दिन का क्यों है, किसी को 9 महीने 16 दिन बाद भी हो सकता है, तो वो उनका वो डॉक्टर्स ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा प्रोवाइड केयर बेनिफिट लाइक नर्सिंग एट होम। तो अगर मैं हॉस्पिटल गया, जैसे कि हमारे किसी न किसी सर्कल में हमें पता लगा कि मुझे तो रूम ही नहीं मिला, हम 4 हॉस्पिटल घूमते रहे और हमें ये नहीं मिला, तो इसमें उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दी कि विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन यू कैन टेक क्लेम ऑफ दैट एक्सपेंस ऑल्सो। पर वो सब आपको आपका पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए ICMR की साइड से, ICMR की रिपोर्ट होनी चाहिए, देन यू कैन टेक दैट क्लेम कि मैंने घर पर ट्रीटमेंट लिया और वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था और मैं होम क्वारंटीन हो सकता था। विद ड्यू परमिशन जो भी आपके बिल्स हैं वो रीइंबर्स करके आप पूरा ट्रीटमेंट जितना भी आपने घर पे लिया विद ड्यू प्रिस्क्रिप्शन पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वीडियो है जो मैं एड में देख रहा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आई रिक्वेस्ट राशि जी, प्लीज वो वीडियो हमसे शेयर करें। नीरज जी 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप करना होगा, तो कर दीजिए प्लीज प्लीज। मैं अभी वो 1 सेकंड में वीडियो चलाती हूँ। हाँ, मतलब ये भी साथ में ऐड करना चाहूंगा कि कोरोना जब हमने स्टार्ट किया था, जब कोरोना मतलब हम एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था, आई हैव टू स्टॉप शेयर। हाँ नहीं, मैं अभी जस्ट शेयर कर रही हूँ। आज हम बहुत अच्छे दौर में आ गए। मैं ये कहना चाहता था कि जो कोविड में हमें इतना डर था, आज हम बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में भी आ गए हैं और अच्छी स्टेट में भी आ गए हैं। हमारी दिल्ली स्टेट तो कहेंगे, मानसिक तौर पर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मतलब काढ़े से ऊपर बढ़ चुके हैं हम लोग। जस्ट 1 सेकंड शेयर कर रही हूँ। पता नहीं कभी कभी ये टेक्नोलॉजी हमें परेशान थोड़ा ज्यादा करती है। हाँ कोई बात नहीं, ये क्योंकि वीडियो खुला हुआ है पर वो मुझे शेयर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो 1 सेकंड फिर से खोलती हूँ। वो आपको नीचे जाकर रूम में एक ऑप्शन है ना जी नहीं नहीं नहीं, मेरा वीडियो जो है, हाँ अब हो गया, अब हो जाना चाहिए। 1 सेकंड। हाँ अब आ गया। फिर से आपको सुनाई दे रहा है? ऑडियो नहीं आ रहा हो। सुनेपन के कोहरे में धूप सी लागे तेरी गोद,
सोनेपन के कोहरे में खुशी लागे तेरी बोली, खुशी लागे तेरी बोली। थैंक यू सो मच सर। माय स्क्रीन विजिबल? जी, ये इतना अच्छा वीडियो था कि मुझे लगा मुझे सबसे शेयर कर लेना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मेरिट। एक चीज और बताना चाहूँ, कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन हम बहुत कंपनीज को स्टडी करते हैं जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो कुछ कंपनीज, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर एल्डर्स। सपोज मैं किसी क्लेम के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ और मुझे उसके बाद उन्होंने बोला कि 15 दिन के लिए आई हैव टू बी एट होम, और 15 दिन के लिए मुझे एक नर्सिंग स्टाफ रखना है या मुझे एक नर्स रखनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर मुझे 15, अगर मैं एक इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी से अगर इंश्योरेंस नहीं लिया और मैं अगर नर्स का कॉस्ट पता करूं, तो दे चार्ज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज फॉर 8 आवर्स, 6,000, 5,000, 8,000, 10,000। पर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर देती हैं जितना आपको डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको इतने दिन का एक रेस्ट लेना है। जैसे कि ये वीडियो ने आपको बताया कि वो प्राइवेट आपको एक नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करेंगे और विदाउट एनी चार्ज। और इसके अलावा सपोज मुझे उन्होंने बोला कि आपको घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, जैसे कि कोविड के पेशेंट्स में है, डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छा, अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे है और मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो वो उनका एक पूरा चैनल है और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया कि इनको 10 दिन तक घर पे ऑक्सीजन लगानी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के इंश्योरेंस कवर में वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको व्हील चेयर की जरूरत है, ब्रेसिस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैंने आपको बता दिया, सक्शन अपरेटस है, वेंटिलेटर है, सब आपको इंश्योरेंस के अंदर ही कवर है। आपके उस, जैसे कि आप बिल देकर आए और आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और ये बहुत अच्छा फीचर है जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं कि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि कितना भी हम फाइनेंशियली साउंड हो, हम जब भी हॉस्पिटल से आते हैं हमारी पॉकेट्स खाली हो जाती हैं। इन लेमन लैंग्वेज कि हर बंदे, हर इंसान का जेब और खाली हो जाती है कि उसके पास फाइनेंशियली पीक हो जाता है कि मेरे पास अब और पैसे नहीं है इसके लिए। और अगर ऐसा हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए और हमारे को बुजुर्गों की सेवा के लिए एक ट्रेंड स्टाफ मिल जाए, तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत मेरिट है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे फादर मदर के लिए मैं अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन अफोर्ड भी कर सकूं और उनकी केयर भी कर सकूं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मतलब बहुत मिनिमम कॉस्ट पे वो लोग प्रोवाइड करें। और भी मैंने एक फीचर देखा कि दे आर प्रोवाइडिंग नर्सेज एट 1,500 रुपीज पर डे। अगर सपोज आपके ट्रीटमेंट के बाद भी आपको चाहिए, दे कैन हेल्प। तो ये बहुत रीजनेबल वो है पॉइंट। इसके अलावा आप 21% का, जैसे हमारे लोग बुजुर्गों को बहुत वो है, आदत होती है कि वॉक करेंगे और वो अपने आप को फिट रखते हैं, तो देयर इज ए ऐप जिसमें आप पॉइंट्स एक्रूट कर सकते हो। अगर आपने 10,000 स्टेप्स सपोज 16 दिन चले, तो आपके 1,60,000 स्टेप्स हो गए, तो आप एक पॉइंट्स एक्रूट करते हो जिसको आप अपने, जब आप रिन्यू कराते हो आप उससे उनको एनकैश कर सकते हो। वो आपको एक तरह से प्रीमियम में डिस्काउंट अर्न करने के लिए बेनिफिट है। ये आपके लिए एक तो आपको हेल्थी रखेगा, हेल्थ कि आप 10,000 स्टेप्स रोज चलते हैं, और आपको प्रीमियम में भी डिस्काउंट मिलेगा। तो सपोज मेरी पॉलिसी 10,000 रुपीज प्रीमियम की है, अगर मैं 10,000 स्टेप चलता हूँ, वॉक करने की आदत बहुत लोगों को होती है, हमारे बहुत बड़ों को होती है, तो वो उनके लिए एक तरह से कमाई भी देगा उनको। और उसको आप कैसे भी एनकैश कर सकते हो अर्न पॉइंट्स को,
कि आप उससे जब आप दवाइयाँ मंगाते हैं तो उनको आप डिस्काउंट वहाँ पर ले सकते हैं, उस एक्यूमुलेटेड जो पॉइंट्स हैं आप उनको वहाँ खर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कंपनीज दे रही हैं। एक ऐप आपको डाउनलोड करना होता है, अपनी उसके साथ आपको अपने आप को कनेक्ट करके अपनी पॉलिसी नंबर डाल दें, तो जब आपके पॉइंट्स अप्रूव होंगे तो आप उनको, ये बहुत अच्छा अच्छा फीचर है इसके अंदर। तो ये तो हुए हमारे बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं कि हमें जब एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, मैं एक लेमैन हूँ, मैंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, अब ये कोविड आ गया तो बहुत है कि भाई अब आपको हेल्थ कवर कराना है, और मुझे पता ही नहीं है, आज तक मैंने लिया ही नहीं कि ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी महंगा हो गया और एक्सपेंसिव तो हुआ ही हुआ, और अब मुझे पूरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। चलो मैंने सोचा था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे घर में कोई बीमार होगा तो मैं उसका ट्रीटमेंट ले लूंगा, लेकिन अगर सपोज एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है 5 लाख रुपए, मैंने सोचा था क्योंकि नॉर्मली हम लोग बीमार नहीं पड़ते या हमारे बुजुर्ग हैं वो हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर 4 लोग कोरोना से हो गए हमारे, तो 20 लाख रुपए तो किसी के पास नहीं होते हैं, मतलब यूजुअली हम लोगों ने इतना प्रोविजन नहीं किया होता। तो जब भी मैं किसी एजेंट को बुलाऊं या मैं कोई हेल्थ पॉलिसी करूं, तो मैंने कुछ पॉइंट समराइज किए हैं जिनको हमें लेने से पहले, पॉलिसी को लेने से पहले हमें देख लेने चाहिए, और क्या हमें नहीं मतलब उसमें पॉइंट नहीं है तो वो पॉलिसी नहीं लेनी। पहले सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उसमें किया कि आपको प्रीमियम्स जरूर कंपेयर करने चाहिए। ऑलमोस्ट 12 कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं मार्केट में, और हमें चाहिए कि हम उनका एक कंपैरिजन बना लें, और कि उसमें प्रीमियम वाइज क्या है। क्योंकि देखो, एक कुछ कंपनीज ऐसी हैं, एक कंपनी ऐसी है जो 65 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक हमारे एल्डर्स के लिए पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। उसने बहुत अच्छा फीचर दिया कि आपने जो 65 साल पर प्रीमियम दिया, आपका प्रीमियम 75 ईयर्स पे भी सेम होगा, या आप जब तक जियोगे। एक फिक्स प्रीमियम आपसे एंट्री एज पर जो डिसाइड हुआ, सेम प्रीमियम आपका टिल यू आर अलाइव, प्रीमियम विल बी सेम। ये बहुत अच्छा फीचर है। नॉर्मली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें एज ब्रैकेट्स के हिसाब से प्रीमियम चार्ज होते हैं, तो ये भी हम जब कंपेयर करें तो ये जरूर देखें। इससे क्या होता है, जिन पर हम डिपेंडेंट हैं या हम अपनी पेंशन में से उस अमाउंट को दे रहे हैं, तो वो हमारी पॉकेट के हिसाब से, मुझे पता है कि मेरा हर साल सिर्फ एक मेडिकल इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम जाना है 20,000 रुपीज, विच इज फिक्स। जबकि और कंपनीज में क्या होता है, जब आप यंगर पीपल की बात करें तो 36 ईयर्स तक एक ब्रैकेट है, 36 से 46 का एक ब्रैकेट है। अगर मेरी एज 46 ईयर 364 डेज हो गई, 365th डे मेरा प्रीमियम बदल जाएगा। तो यूजुअली लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों छोड़ते हैं, यार लास्ट ईयर तो मेरा प्रीमियम 15,000 था, इस साल 19,000 हो गया, कभी एजेंट से पूछते ही नहीं भाई क्यों हुआ। सिर्फ एक मिथ है, नहीं यार हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो गया, अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो एक प्रीमियम के ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 10-15% का वेरिएशन हर कंपनी का अलग अलग है, उसमें फिर फीचर्स भी हैं। अच्छा, आपको ये भी एक रिकन्फर्म करना है कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपनीज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पर आपको कितने दिन बाद कवर दे रही हैं। कुछ कंपनीज 12 महीने बाद दे रही हैं, कुछ कंपनीज आपको 24 मंथ्स बाद दे रही हैं। तो आपको ये भी चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो लोग बहुत छोड़ देते हैं और एजेंट उनको बताता नहीं। जब हम कभी, जैसे अभी मेरे एक नोन का था, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, वो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद एडमिट हो गए, वो किसी ने बताया ही नहीं। उनको तो यह था हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मेरे को क्लेम मिलेगा। वो उन्होंने बहुत शोर मचाया। तो ये बहुत कॉमन वो है। अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो कितने दिन बाद कवर होती है। अच्छा, किसी ने, एजेंट ने समझा दिया आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लेना, हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे। कैटरेक्ट इंक्लूड ही नहीं होता 2 साल तक। वो ये देखते हैं कि ये बीमारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई है, तो प्री एग्जिस्टिंग तभी वो इंक्लूड करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत आपको ध्यान से देखना है। और एक्सक्लूजन्स क्या है, कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं जिनके परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं, तो कभी भी हमेशा आपको वो ब्रोशर जरूर चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि कोविड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सक्लूजन्स हैं, पर आप सोचोगे यार मैंने तो 1 रुपया भी नहीं देना और जाऊं मैं, तो बाद में जब आपका बिल बनता है, डिस्चार्ज समरी बनती है, तो आप कहते हैं ये कैसे आ गया। फिर आप अपने एजेंट को फोन करते हो। तो ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम है। मैं भी यही करूंगा, अगर मैं भी पूछूंगा, अगर मेरा कार इंश्योरेंस का भी कवर होता है या मेरा होता है, तो मैं बोलता हूँ भाई ये रबड़ पार्ट्स के एक्सपेंसेस क्यों लगे, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखें। और जब हम एल्डर्स की पॉलिसी करते हैं तो उसमें एक को पेमेंट का पार्ट एक्टिव हो जाता है।
जब हम नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो 60 साल से पहले जो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उस पर को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। को पेमेंट मैं समझा दूं, को पेमेंट क्या होती है। सपोज कि मेरा बिल 1 लाख रुपए आया, मैं क्लेम हमने डाला 1 लाख रुपए का, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मोर प्रोन टू डिजीज हैं, उस पर एक को पेमेंट का क्लॉज लगाती हैं कि हम इसका 80% देंगी, 20% आपको बियर करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज 30%, दैट इज कॉल्ड को पेमेंट। बिलो 60 ईयर्स ये को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होता, 100% आपका इंक्लूडेड होता है। जो भी आपका खर्चा हुआ 100% रीइंबर्स होगा, कैशलेस होता है या रीइंबर्स होता है। पर अबाउ 60 ईयर्स, अबाउ 65 ईयर्स जब हम ये पॉलिसी लेते हैं तो को पेमेंट एक्टिव हो जाता है। तो ये ध्यान बहुत रखना जरूरी है। कुछ कंपनीज 20% को पेमेंट पे काम करती है, कुछ 30 पे। ये कोविड में भी एप्लीकेबल है। एक और अच्छी चीज बताता हूँ जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई। एक बुजुर्ग ने पॉलिसी को कोट करना चाहा 65 ईयर्स में, ऑलरेडी पॉलिसी चल रही थी। 65 ईयर्स तक आप पॉलिसी कोट कर सकते हैं, उसके बाद आप सीनियर सिटीजन की पॉलिसी में चले जाते हैं। को पेमेंट एप्लीकेबल होता है जो भी पॉलिसी 60 ईयर से अबव। उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, 20% को पेमेंट एप्लीकेबल हो गया। उनके पास पॉलिसी उन्होंने 55 ईयर्स में शुरू की थी। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पुराने पेपर्स ही संभालते नहीं रिन्यूअल के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो भी रिन्यूअल्स के पेपर हैं आप उनको संभाल के रखिए। मैं आपको बताता हूँ बड़ा छोटा सा उनके लिए क्या बेनिफिट हुआ। उनका को पेमेंट एक्टिव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रूफ था कि वो 59 ईयर्स में इंश्योर्ड थे। मीन्स दे हैव द प्रूफ आई वॉज इंश्योर्ड एट द एज ऑफ 55 एंड दे हैड कंटिन्यूटी प्रूफ कि मैंने पॉलिसी को ब्रेक नहीं किया। आप सोचिए अगर मेरा बिल 2 लाख रुपए आया तो उन्होंने 40,000 रुपीज अर्न कर लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल पेपर कि 59 ईयर्स का उनके पास एक पेपर था जो उनको प्रूव कर सकता था कि वो 60 ईयर्स की एज में इंश्योर्ड थे। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। हम क्या करते हैं, पेपर आया, रिन्यू हुई, हमने करंट, जैसे हम कार इंश्योरेंस का पेपर भी नहीं संभालते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके पुराने पेपर जरूर संभाल के रखें। वो आपके लिए आपकी प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के लिए भी काम आएगा, प्लस आपने क्लेम्स क्या लिए हैं, और ये आपको मैंने को पेमेंट वाला जो बताया वो बहुत। अपने लिए एक सूटेबल प्लान बजट के अकॉर्डिंग करें। आपके बजट में हर तरह के बजट में प्लान्स अवेलेबल हैं और आपको सिर्फ उसमें से बेस्ट ढूंढना है। आप ये मत सोचें कि मैं इतनी उम्र का हूँ, मेरे को 1 लाख का नहीं मिलेगा, 2 लाख का नहीं मिलेगा, 5 लाख का नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर बजट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नो क्लेम पॉलिसी बहुत कंपनीज में नहीं है। नो क्लेम पॉलिसी ये होती है कि अगर मैंने पिछले साल पॉलिसी ली और इस एक साल में मुझे नहीं हुआ, जैसे कि कार इंश्योरेंस में भी होता है, हमें फोन आता है कि आपका नो क्लेम बोनस बनता है 20%, तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे ही इसमें डिस्काउंट नहीं होता प्रीमियम में, हेल्थ इंश्योरेंस में। उसमें मेरी सम एश्योर्ड जो रिस्क कवर या वो जो पेइंग कैपेसिटी है मेरी क्लेम लेने की, वो बढ़ा देते हैं वो। जैसे कि 5 लाख रुपए का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और एक साल में मैंने कोई क्लेम नहीं लिया। कुछ कंपनी 10% उसमें एड ऑन करती हैं और उसकी लिमिटेशन है 100% तक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख का नो क्लेम बोनस 15 लाख हो जाएगा, सीलिंग है। तो नो क्लेम बोनस के ऊपर भी चेक करें कि नो क्लेम बोनस कितना है। बहुत कंपनीज में 20% भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी लेते वक्त जो आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं ध्यान रखना, देखने वाली बात है, क्या नहीं आपने करना, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे और बिना उस प्लान को समझे, खासकर बुजुर्गों के लिए आपको प्लान को पूरा डिटेल में समझ लेना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है आपको। कि ऐसा नहीं करना कि किसी ने मुझे बता दिया कि मेरे पास मैक्स बुपा है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, सपोज इस कंपनी की है, उस कंपनी की है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे वाला काम नहीं करना। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता कि उसको क्लेम मिल गया और इसको नहीं मिला। इसमें घड़ी डिटर्जेंट की ऐड नहीं चलेगी। आपको पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि इसमें हिडन होती हैं, और जब हमारे पास दुख आता है तभी हमें पता लगता है कि इस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था, तो मुझे। इसीलिए आप कंडीशंस को जरूर एक बार समझ लें, और नहीं समझ आए तो उसको बोलें कि मुझे लिख कर दे। अगर आप उसके ब्रोशर को नहीं समझ पा रहे, आपके मन में जितने सवाल आते हैं आप उसको बोलिए मुझे लिख कर दे। तो हमेशा क्या होता है, हम जो वो पूछना चाह रहे हैं, एजेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा गोल मोल बात कर देते हैं, और अपनी पॉलिसी को करने के लिए, जैसे अभी लास्ट वीक एक हुआ, उनको शुगर थी, डायबिटीज थी,
और एजेंट ने पहले उनको बोल दिया कि हाँ जी आपका इंश्योरेंस कर देंगे। 62 ईयर्स की लेडी थी, उसमें एक क्लॉज है कि उसमें लोडिंग लगती है। अब उसने बोला जी मुझे तो प्रीमियम मिल रहा है 30,000 में, बोला सर मैं आपको 27,000 में दे दूंगा। अब वो गोलमोल करते हैं कि मेरा तो टारगेट है, मुझे अचीव करना है, और उसने बोला, उसने उसको पेमेंट लिंक भेज दिया। हम क्या करते हैं, पेमेंट लिंक आ गया, उसमें लोडिंग लगी हुई थी 2,900 की, जो कस्टमर ने, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको लगेगा इसमें जीएसटी लग गया, वो लग गया। तो कई बार वो गोलमोल करके नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो उसने एजेंट जैसे ही उन्होंने देखा यार ये तो 30,000 क्रॉस हो गया, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या, अरे सर आपने बताया नहीं था आपकी मदर को। तो कह रहे मैंने आपको सब कुछ बताया था। अच्छा सर ये चेंज हो गया होगा, तो वो गोलमोल करते हैं। अब आप इस सिचुएशन में होते हो कि आप ना छोड़ सकते हो, आपने पोर्ट करा ली, 3 दिन बचे, वो आपको ऐसी सिचुएशन में देंगे 21 को पोर्ट होना है, 20 तारीख को लिंक भेजेंगे। तो मतलब आप ट्रेन में चढ़ भी गए, गेट आप फ्लाइट में बैठ गए, गेट्स बंद हो गए हैं, अब आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो हाल कर देते हैं। तो थोड़ा अवेयर रहिए, सब जगह धोखा है। मैं ये नहीं कह रहा सभी धोखेबाज हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये फ्लॉज हैं। तो आप एक बार कंडीशंस को पढ़ें, समझें, उसके बाद डिसीजन है। ये नहीं कि मैंने एडवाइस कर दिया तो आप ले लें। ये किसी के लिए बहुत अच्छा है कोई कंपनी, किसी के लिए कोई, हर एक का अपना मतलब वो है। किसी को सरकारी कंपनी में बहुत अच्छे क्लेम्स मिले, कईयों का सरकारी के साथ एक्सपीरियंस खराब है, किसी का प्राइवेट के साथ। तो ये डिपेंड ऑन कि आपने कैसे डील किया, कौन से हॉस्पिटल में गए, उनका पास जो टीपीए डेस्क था उनका वो कैसे हैंडल करता था, उस हॉस्पिटल की टीपीए की किसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, ये भी बहुत। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स पे जरूर काम करना चाहिए। एक चीज का ध्यान और रखें, एक मेरे क्लाइंट हैं वो दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनका होम टाउन है महाराष्ट्र में, रतलाम। अब अगर वो दिल्ली में पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम आता है 11,000 रुपये। अगर मैं उनका रतलाम डालता हूँ तो वो आ जाता है टायर 2 टायर 3 सिटी, प्रीमियम आ जाता है उनका 7,900। देखिए कितना डिफरेंस है। एजेंट को तो बेनिफिट हो गया उसका टारगेट, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं। आप आपका जो परमानेंट एड्रेस है, गवर्नमेंट ने ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि टायर 2, सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मेरा होम टाउन पानीपत है, या थोड़ा सा और अंदर चले जाएं, तो टायर 2 में प्रीमियम कम है, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिल्ली आकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियली। सेम अमाउंट, सेम सम एश्योर्ड, कोई ट्रीटमेंट में फर्क नहीं। आप अच्छा वो कैसे आप उसको कर सकते हैं, और आप ये करिए, जैसे मेरा होम टाउन सपोज पानीपत है, सपोज नहीं मेरा होम टाउन ही पानीपत है, तो मैं वहां पर लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल चेक कर लूंगा कि अगर मैं बीमार हुआ तो मैं अपने होम टाउन ही जा सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं। तो आप लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जरूर चेक करें जहां जहां आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ तो पहले मैं अपने घर के पास के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल देखूँ क्या उसमें वो है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे फैमिली वाले दिल्ली रहता हूँ, जनकपुरी नहीं जाएंगे। तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि मेरे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स घर के आसपास वाले हैं कि नहीं उनके। अच्छा एक चीज और, सपोज जैसे ये बहुत बड़ा मिथ ये आता है कि मेरे फादर या मैं एडमिट हुआ, उन्होंने बोला जी हाँ जी हेल्थ इंश्योरेंस है, चलो जी करो एडमिट, बना दो इनका वो। कुछ अब मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ना उनके साथ एक पैकेजेस कर लिए हैं कि उससे ज्यादा वो, जैसे मैंने आपको कोविड का बताया, उन्होंने एक पैकेजेस कर दिए हैं, अगर हार्ट का ऑपरेशन होना है 2 स्टंट डालें तो ये अमाउंट ही लगेगा। तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो भी एग्जॉस्ट होती है, बात क्लेम की नहीं है, आपके अगले किसी रिस्क को कवर करने के लिए वो आपको हेल्प करती है ना। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि जब हम बेड पर हैं हम ये चीजों को नहीं ध्यान रखते, लेकिन आपको अपने फैमिली मेंबर, एटलीस्ट अपनी स्पाउस, अपने फादर मदर, उनको ये बताना चाहिए कि हॉस्पिटल भी अपनी मनमानी ना कर सके, क्योंकि वो आपकी प्रीशियस मनी से आपने पॉलिसी ली है। और बुजुर्गों के लिए खासकर उन्होंने अपने पेंशन के अमाउंट से और अपनी सेविंग से ली है, तो उनका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और अगली डिजीज के लिए मेरे पास वो पैसा इंश्योर्ड अमाउंट रहना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल वाले मनमानी करके मेरी पॉलिसी में वो अमाउंट को एग्जॉस्ट ना कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स भी जरूर चेक करें, और आपको पता लगेगा कि लिस्ट ऑफ मेरे घर के पास वाला हॉस्पिटल उसके उसमें पैनल में है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार पूछते हैं, फिर फोन करते रहते हैं उनको कि यार ये वाला हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ नहीं हूँ। कैशलेस हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं किसी
जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं मुंबई गया, नैनीताल गया, वहां मुझे एडमिट होना पड़ा, वो मेरा ऑन पैनल या लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिट हो जाइए, इंटीमेट कर दीजिए, उनके टीपी को बता दीजिए कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो वहां पर इंटीमेट कर देंगे, आपको रीइंबर्स हो जाएगा अमाउंट। ऐसे डरने वाली बात नहीं है कोई। लेकिन जहां हम रहते हैं उसके आसपास के हॉस्पिटल्स की लिस्ट अपने मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ लगा कर रखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप उसी की एम्बुलेंस को कॉल करें, ये बहुत बेनिफिट हो। और एक चीज और, जब आप ट्रैवल करें वहां के भी लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स की लिस्ट अपने साथ कैरी करें। हम लोग सिंगापुर गए थे, हमारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया, हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे मेरे पार्टनर, फ्रैक्चर हो गया उनका पैर। अब हमने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हुआ था, लेकिन हमें अब पता ही नहीं था, हमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स ही नहीं पता थे, वो जहां पर हमें ले गए हम वहां पर चले गए। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें देखने चाहिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास वो लिस्ट हो, तो उससे आपके लिए भी बेनिफिट है और आपकी फैमिली के लिए जो आपको लेकर जा रही है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम पॉलिसी लेते हैं यूजुअली हम बहुत चीजें, आपके जो एजेंट हैं या जो आपको एडवाइजर हैं वो आपको बोलते हैं मत बताओ, या हम उनसे छुपाते हैं। जैसे कि मेरी हेल्थ हिस्ट्री जो है, मैं डायबिटिक हूँ, जैसे शुगर मेरी नॉर्मल रहती है, डोंट हाइड एनीथिंग रिलेटेड टू योर मेडिकल हिस्ट्री। अच्छा, एक मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम कस्टमर्स की हुई है। एक कस्टमर का ऑपरेशन हुआ आज से 18 साल पहले स्टोन का। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि आप जब से पैदा हुए जितना आपको पता है आप उतना मेंशन कर दें, क्योंकि जब आपका क्लेम आता है तो वो उस समय जो उनके पैनल डॉक्टर्स हैं उनके लिए रोज का काम है, जैसे कि आप जिस भी प्रोफेशन में, आपके लिए पता लग जाता है नब्ज पकड़ी ये क्या गलती कर रहा है और क्या बता रहा है। जैसे मैंने आपको लीवर वाले की बताई, उसने क्या डाला कि मैं तो शराब पीता ही नहीं। उन्होंने बोला हम भी दिन में इतने पेशेंट्स को रीइंबर्स करते हैं कि लीवर 6 महीने में खराब नहीं होता, कि कितनी भी दारू में डुबो भी देंगे ना आपको तो भी लीवर नहीं खराब हो सकता, जितना मुझे पता है। फाइनेंस डॉक्टर ज्यादा बताएंगे। तो लोग कई बार चालाकी करते हैं और आपके क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं, जिससे आप जो एजेंट्स करते हैं, आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री है आप उसको जरूर बताएं। आपको 15 साल पहले भी अगर आपका ऑपरेशन हुआ है आप उसको मेंशन करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको हेल्प ही करेगा। मान लीजिए आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी आपका छोटा मोटा, आपको कोई ऐसी कोई बीमारी है आपको जो आपको लगता है कि जिसकी आपने मेडिसिन ले रहे हैं या ली थी, आप जरूर मेंशन करें, लोडिंग की टेंशन ना लें। क्योंकि क्लेम जब आता है, जब आप एडमिट होते हैं तभी तो डॉक्टर आपसे पूछता है आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई हिस्ट्री है कोई ऐसा, तो आप वहां भी तो बताते हैं। तो क्लेम में ये प्रॉब्लम आएगी। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये गलती मैंने भी की है कि डायबिटीज की तो बहुत इग्नोर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हम बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें उसमें टेस्ट आ जाते हैं। और एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है जो सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं लेडीज के प्रेगनेंसी के, वो भी हम बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स मांगते हैं, डिस्चार्ज समरी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा ना करें आप, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो 2 साल बाद वो चीजें सब इग्नोर कर दी जाती हैं, लेकिन हेल्थ में ऐसा बिल्कुल ना करें। हम अपनी एग्जिस्टिंग डिजीज को जरूर बताएं, और स्पेशली एल्डर्स। कुछ भी है आपको, आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके लिए भी बहुत पॉलिसीज हैं। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, डोंट रिफ्रेन फ्रॉम क्लियर क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। मतलब आपको कुछ भी डाउट हो आप ये ना सोचें, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए कि जैसे ही हमारी एज 60 ईयर्स क्रॉस होती है, हमारे लाइफस्टाइल हैं, हम हमारे तो खैर लाइफस्टाइल बहुत खराब है हम, और जो पुराने हमारे लोग हैं वो 60 ईयर्स के बाद इन सब बीमारियों में और उसमें आए, हम तो 40 ईयर्स के बाद ही उन चीजों। अगर आपने कोई हार्ट का ऑपरेशन कराया है, आपने कोई भी सर्जरी कराई है और आपको लगता है यार मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस हो नहीं सकता, आप घबराए मत। हर तरह के इंसान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। चाहे मुझे स्टंट डाला हुआ है, मैं बहुत सेवियर डायबिटिक हूँ, मेरे को इंसुलिन लेनी पड़ती है, लोगों को लगता है मैं इतना, मेरी एक आंख खराब है, मेरा एक हाथ नहीं है, या मेरे को कोई भी मेरे को डेफिशिएंसी है, आप घबराएं मत, आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके अलावा भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए मुझे हेल्थ कवर चाहिए। तो हर एज ग्रुप, हर, मतलब आप समझे कि आपने सोचा नहीं है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास। तो इसीलिए आप कुछ ऐसा करके आप हेजिटेट ना करें कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, मैंने ये
मेरे पास एक अंकल हैं जिनकी 3 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, उनकी हमने मेडिक्लेम पॉलिसी ली। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं हमारे जिनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसा कि हमें लगता है कि मेरी एज 65 से ऊपर हो गई है, अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता। डोंट वरी, अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो 65 इयर्स वालों के लिए ही पॉलिसी दी है, जो स्टार्टिंग एज ही 65 इयर्स है। जिस पॉलिसी का नाम ही मैं नाम ले देता हूँ, रेड कारपेट है, स्पेशलाइज्ड पॉलिसी है, उसकी एंट्री एज ही 65 है। तो देखिए हमारे सीनियर सिटीजन के लिए कितना अच्छा किया, 65 और एंट्री एज ही 75 विदाउट एनी हेल्थ चेकअप। मतलब आप आज फॉर्म भरें, 15 दिन बाद आप कोविड के लिए भी हैं और आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज उसके अंदर इंक्लूड कराएं, 12 महीने बाद चाहे कुछ 24 मंथ्स बाद है। कितना बढ़िया है, 65 साल की उम्र में, जब जिसके लिए हम अवेयर ही नहीं थे कि हमें इस उम्र में भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, तो बहुत अच्छा है। एक और कंपनी है जो 80 ईयर्स तक देती है विद हेल्थ चेकअप। और हेल्थ चेकअप कैसे हैं, नॉर्मल। और उसमें ये भी है कि अगर आपने, यूजुअली हम लोग 60 साल के बाद अपने हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, अगर आप अपनी रिपोर्ट देते हैं तो 20% का प्रीमियम में भी डिस्काउंट है, जो 3 महीने तक वैलिड होती है रिपोर्ट। तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है ये। अगर मेरा प्रीमियम 20,000 बन रहा है तो मुझे 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों ना लें। अगर 16,000 रुपए देकर मुझे 4 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। हम सिर्फ हेजिटेट करते हैं कि हम इंश्योरेंस पता ही नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है, हमें लगता है नहीं अब बुजुर्ग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बुजुर्ग सबके लिए सम्मानीय है, रिस्पेक्टफुल है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी जानती हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी उसके साथ आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने वो, मतलब समझ ले जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं तिया सांझी होती हैं, तो ऐसे ये भी है कि पेरेंट्स भी यहाँ पे सांझे हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कितना ज्यादा IRDA इस पे काम कर रहा है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ, कुछ प्रीमियम तो लेता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता है क्योंकि उनकी एज पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उस प्रीमियम के एवज में आपको बहुत बड़ा कवर देता है। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपके पास बहुत ज्यादा कवर नहीं है तो कुछ तो है। ये मेरी एडवाइस है कि आप एक बार पता जरूर करें। एक ये भी मिथ है कि 60 साल के बाद बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 65 ईयर से लेकर 75 ईयर्स तक की पॉलिसी है, इसमें विदाउट मेडिकल टेस्ट आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग ही ले सकते हैं, एज के 0 ईयर्स टू 45 65 वाले भी बिना मेडिकल टेस्ट के। ये बहुत बड़ा चेंज है जो लास्ट ईयर में आया है कि 65 ईयर्स के लिए भी विदाउट हेल्थ चेकअप आप एक पॉलिसी ले सकते हैं। हैवी प्रीमियम और पेड ऑन ओल्ड एज ऐसा लगता है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी नहीं पता करते कि यार अपनी ले लेते हैं, उनके लिए मैं खर्च करता हूँ, क्यों अपनी जेब पर बर्डन लेते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कीजिए, उस पैसे को जो आप बचाएंगे उनके ट्रीटमेंट के, वो आप उनकी हेल्थ के या उसके अलावा चीजों पर उनकी सपोर्ट के लिए खर्च करें। आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर लें। प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, जो मैंने आपको बताया। एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने लिए एक एक प्लान निकाला कि जिसमें प्रीमियम विल बी सेम फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। जो एंट्री एज है उस पर प्रीमियम डिसाइड हो गया तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो आपको लगेगा हैवी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें जो उन्होंने फीचर ऐड किया, वो जो प्रीमियम जो चार्ज करते हैं वो सम एश्योर्ड पे होता है। सम एश्योर्ड मीन्स कि मैं कवर कितना ले रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख, प्रीमियम उस पर बेस्ड है, ना कि एज पर। ये बहुत बड़ा फीचर है जो बिलो 60 ईयर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं आजकल चाहूँ कि मैं 10 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस कर 15 लाख कर लूँ, तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम 5 लाख के ऊपर, लेकिन वो बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा फीचर है कि उनका सम एश्योर्ड पे नहीं, उनकी सिर्फ उस पर प्रीमियम लगेगा। तो ये फीचर अच्छा। एक फीचर इसके अंदर और बताता हूँ। सपोज मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की। अब मुझे लगता है कि मैं प्रीमियम नहीं दे सकता, मुझे मेरी फैमिली के लिए 10 लाख का कवर चाहिए। सपोज मैंने 3 लाख के या 5 लाख के प्रीमियम के लिए, मेरे घर में 2 एडल्ट 2 बच्चे हैं, मैंने प्रीमियम जो पे किया उसका 17,000 18,000, 5 लाख का जो प्रीमियम है 2 एडल्ट 2 बच्चों का दिया है। अब मुझे 10 लाख करना है जिसका प्रीमियम आ रहा है 40,000 रुपीज या 39 या 37,000 35,000, अलग डिपेंड ऑन द कंपनी। तो एक बहुत अच्छा फीचर अभी आया है, आप 1 साल के लिए एक टॉपअप प्लान ले लें।
टॉप अप प्लान कैसे होता है, वो अलग अलग वेरिएंट में आता है, जिसका बेस 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। मतलब आपको डबल प्रीमियम नहीं देना। 5 का 10 लाख अगर करते हैं, आपका 19,000 प्रीमियम है तो 38,000 हो जाना चाहिए 10 लाख का, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट करके 35 आता है। आप 5,000 रुपए देकर 5 लाख का टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप कोरोना टाइम पे लोगों ने बहुत कराया। जैसे मेरे पास 10 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं 20 लाख का टॉपअप लेना चाहता हूँ, वो मुझे कॉस्ट करेगा 6,500 रुपीज। 25 लाख रुपीज का टॉपअप भी 6,506 रुपीज में है, जो बिलो 40 ईयर्स है, 45 ईयर्स है। तो देखिए आप 6,506 रुपीज में मैंने 25 लाख का, मतलब इतनी मेरा टोटल कवर कितना हो गया, 35 लाख रुपीज। और अगर यही मैं 25 लाख की पॉलिसी लेना चाहता तो मेरा प्रीमियम बनता 75,000। ये एडिड फीचर लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, हम जैसे बात होती है आपके पास इंश्योरेंस है, हाँ जी है, कितने का ये नहीं पता, मेडिक्लेम है। आपको यही नहीं पता कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर रूम रेंट बहुत बढ़ चुका है, मिनिमम रूम रेंट 5,000 से नीचे किसी का नहीं है। उस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मैंने बोला, 3,000 रुपये रूम रेंट के लिए आप एलिजिबल है। मतलब मेरे गली का मोहल्ला क्लिनिक भी 3,000 रुपये में मेरे को बेड नहीं देगा, लेकिन हमने सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे दिल्ली जैसे शहर में हम रह रहे हैं। उन लोगों को क्या करें, अब मैं एकदम बोले हम उनको कि यार तुम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा लो, सभी के लिए फाइनेंस, तो आप टॉपअप प्लान ले सकते हैं। वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको 10 लाख का कवर दे देगा। ये आप टॉपअप प्लान ले सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो आप अपने एजेंट से डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको मिनिमम प्रीमियम में बहुत एडिड फीचर देगा। 5 लाख वाले के लिए भी टॉपअप अवेलेबल है, और टॉपअप 65 ईयर्स तक लोगों के लिए अवेलेबल है, उससे ऊपर के लिए टॉपअप अवेलेबल नहीं। एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर के लिए टॉपअप अवेलेबल है, बहुत एडिड फीचर है इस समय, और 1 साल के लिए ऐसा नहीं है आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो 1 साल अगर है, कुछ हो सकता है तो आप इस फीचर को अपने लिए ले सकते हैं। और उसमें भी 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, 15 दिन बाद वो टॉपअप एक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, ये टॉपअप एक्टिव कैसे होता है और उसको यूज कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मेरी पॉलिसी 3 लाख रुपए की है और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, और मेरा प्रीमियम, मेरा जो बिल बना वो बना 3,50,000, 3,50,000। अगर आप नॉर्मल या लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो मुझे 50,000 रुपीज पे करने हैं, क्योंकि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख है। तब ये टॉपअप एक्टिवेट हो जाता है 3,01 रुपीज से। जो बैलेंस अमाउंट है वो टॉपअप से पे हो जाएगा। उधर आपका जैसे ही आपने उसको यूज किया, वहां पर आपका एक टॉपअप एक्टिवेट होता है आपकी ओरिजिनल हेल्थ में। यहाँ पर आपके पास 50,000 यूटिलाइज होने के बाद अगर मेरा 10 लाख का टॉपअप है तो 9.5 लाख रुपया फिर मेरे पास बच गया नेक्स्ट क्लेम के लिए। तो ये बहुत एडिड फीचर है, मेरे को बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए आप ये वाला फीचर को यूज कर सकते हो, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में आप इस फीचर को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। राशि जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मतलब कितना मैं, ऐसे तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ अगर एक टॉपिक को पकड़ लें 65 ईयर्स तो, लेकिन मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी की कोई स्पेशल क्वेरी हो। जी बिल्कुल, 2-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। मैं उस पे आ जाती हूँ। हाँ, those who have insurance and they want to add or change it, how can? एक फीचर और बताना रह गया। जी, एक फीचर और बहुत अच्छा मैंने स्टडी किया, सॉरी मैं मिस कर गया। एक हमारे बुजुर्गों के लिए मैंने एक फीचर बहुत अच्छा मैंने देखा था। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रीमियम चार्ज करने के बाद उनकी एक प्रीमियम पॉलिसी है, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि एक और एल्डरली पीपल जिनके बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं या वो नहीं रहते हैं उनके साथ। सपोज मेरा बेटा पूना में जॉब करता है और मैं नोएडा रहता हूँ और सोसाइटी में रहता हूँ, इट्स अ सेफ सोसाइटी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चाहता है कि मेरे फादर की हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ली हुई है, मैंने एक प्रीमियम पॉलिसी ले रखी है, उसमें मेरे फादर के रेगुलर चेकअप्स होते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक आपको पर्सनल हेल्थ कोच प्रोवाइड करते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो क्या करेगा, एक असाइंड डॉक्टर होता है उनके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, वो उनको उनसे बात भी करता है कि आप कैसे हैं,
आपने जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ शेयर करते हो, आपको रेगुलर क्या चेकअप्स होने हैं, आपके शुगर टेस्ट होने हैं, आपके बीपी शुगर तो चलो ये रेगुलर हो गए, इसके अलावा आपके हर 3 मंथ्स में कोई चेकअप होने हैं, तो वो जो हेल्थ कोच है, असाइंड हेल्थ कोच, वो पर्सनलाइज रहता है। मतलब एक कॉल सेंटर है, उसमें असाइंड डॉक्टर आपके लिए हो गया, आपके पेरेंट्स के लिए, तो मतलब एक तरह से वो एक आपका वर्चुअल बेटा हो गया, या वो लेडी है तो वर्चुअल डॉक्टर हो गई, मतलब वो आपके पास असाइंड है। आपके पेरेंट्स चाहें उससे बात कर सकते हैं, बेटा आज मेरे को इजी नहीं लग रहा, अनईजी लग रहा है, या मैं आज वॉक करके आया, तो वो आपसे बात करते हैं। मतलब कॉल सेंटर है, लेकिन वो आपसे ऐसे बिल्कुल, और अगर आपको याद कराएंगे, अंकल आपका ये आज टेस्ट ड्यू है, आप कहें तो हम अरेंज करें, तो ये बहुत बड़ा एडिड फीचर है। जैसे सपोज अब मेरे बेटे को मेरे पास आने में मान लीजिए 8 घंटे लगेंगे, फ्लाइट लेकर आएगा, या जैसे कोरोना है तो फ्लाइट ही नहीं है, वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। अगर वो नहीं है कॉल सेंटर में, उस डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है, तो दूसरा डॉक्टर असिस्ट करेगा, उनके पास पूरा आपकी हिस्ट्री रहती है। ये फीचर मतलब जस्ट लाइक मान ले मेरे बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं, तो उनका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपके उसमें इमरजेंसी का बटन भी है, आपको कुछ इमरजेंसी है वो आपके लिए एम्बुलेंस अरेंज कर देंगे। इमरजेंसी बटन है, जैसे होता है ना इमरजेंसी डायलिंग का फीचर, बहुत एडिड फीचर्स हैं उसमें कि आपके लिए वो सब अरेंज करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके मतलब हेल्थ कोच आपको गाइड करेगा कि आपको इतनी डाइट लेनी चाहिए। मतलब आप जो सोच सकते हैं ना फीचर्स एक बेटे में और एक जो उनके बच्चे में, वो अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को ध्यान रखते हैं, वो पूरा एक एक फीचर उन्होंने उसमें ऐड किया है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जिससे क्या हो सकता है कि मैं अगर ट्रैवल करना चाहता हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, और वो ट्रैवल कर रहे हैं, सॉरी वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप हेल्थ कोच को हैंड ओवर कर दें कि मैं 15 दिन तक नहीं हूँ, मेरे फादर का ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। वो कभी भी उनको कॉल कर सकते, वैसे तो 24 आवर्स की है, लेकिन वो असाइन डॉक्टर की जब ड्यूटी रहेगी वो रोज होते हैं। इसके अलावा 24 आवर्स की उनकी आपके लिए असाइन डॉक्टर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कोई ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक फीचर और है, आपको आपने सपोज मैंने किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है, वो हमारे में होता है ना ट्राई करने में क्या जाता है, या किसी और से, वो हम अपने डॉक्टर्स के साथ भी करते हैं कि हम एक और से सलाह ले लेते हैं। वैसे तो हमारे देश में हर घर में डॉक्टर है, हर इंडियन एक डॉक्टर है, तो लेकिन आप सेकंड ओपिनियन उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल, अभी कोरोना के लिए पूछो तो मेरे पास 200 नुस्खे आ जाएंगे और मैं सब इम्प्लीमेंट कर दूं। कोई उसमें से दालचीनी निकाल देगा, कोई उसमें से वो निकाला, तुम ये मत करो वो गर्म है। तो हर एक के अंदर एक डॉक्टर है, तो वो आप सेकेंड ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ये एडिड एडवांटेज है जो पॉलिसी होल्डर के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उनके पैनल डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो 200 रुपए वाला डॉक्टर है भाई, हाँ जी गली वाला डॉक्टर, ऐसा नहीं है। उनके बड़े सीनियर डॉक्टर, सीनियर सर्जन, किसी भी आपको, आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना, आपको लगता है यार ये, या हार्ट में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है कि सर्जरी हुई नहीं, और आप सेकंड ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते। ये आपके लिए बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, जो एडिड एडवांटेज हैं जो इस कंपनी में उन्होंने ऑलरेडी। और इसके अलावा जब आप 1 साल तक पॉलिसी चला लेते हो, उसके बाद आपके हेल्थ चेकअप के लिए, जैसे नॉर्मल हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ से दिया जाता है। कूपन्स हैं उसके, आप लाल पाथलेट जाएं, आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं, चाहे वो 999 का है, लेकिन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डिपेंड ऑन कि आपकी पॉलिसी कितने समय छोड़ की है, उसमें बहुत तरह के हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है आफ्टर 1 ईयर, नो क्लेम आने के बाद। ये बहुत बड़ा एडिड एडवांटेज है, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इंडिया में आदत है ना, फ्री मिलेगा तो जरूर कराएंगे, चाहे पेट खराब हो जाए, लेकिन हम खाते हैं, फ्री की चीज जरूर खाएंगे या यूज करेंगे, एक्सपायर नहीं होने। मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने बहुत एडिड फीचर डाला है कि इसी बहाने हम अपना चेकअप तो कराते हैं। ये नॉर्मल इंश्योरेंस मतलब बिलो 60 ईयर्स के लिए भी ये वाला एडवांटेज दिया है उन्होंने। हम इसी बहाने 1 साल में अपने बॉडी चेकअप तो करा लें। ये मतलब लोग करते नहीं है, मैंने भी कूपन यूज नहीं किया, मुझे आते हैं वाउचर, पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये एडिड एडवांटेज है हमारे लिए। आपको जाना है, कुछ पे नहीं करना, अपना पॉलिसी नंबर बताना है, उनकी लिस्ट ऑफ लैब्स हैं, आप जाएं, अपना हेल्थ चेकअप कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वापस आ जाएं। तो एटलीस्ट हमें ये अवेयर होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद हमारी बॉडी में कुछ जो चेंजेस आए हैं, तो काढ़ा वाड़ा पीकर जो भी हमने देसी नुस्खे बनाए, तो एक बार फिटनेस करा लेनी चाहिए। ये मैं फीचर ऐड करना चाहता। हाँ जी।
हाँ जी नीरज जी, अमेजिंग सेशन। आपने जो भी चीजें अभी तक शेयर की उसमें बहुत कुछ ऐसा था नया सीखने वाला। मुझे बहुत सारी चीजें खुद नहीं मालूम थी, और आपने जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी नई नई चीजें पता चली हुई। लाइक हैविंग अ पर्सनलाइज्ड interaction with a doctor is absolutely new for me. I had no Yes. idea कि ऐसा कुछ हो सकता है। So कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। पहला एक सवाल मैं लूंगी that those who have an existing insurance and they want to either add something to it or change the insurance, how can we do that, especially in today's world when after the policy agent has sold the policy they are generally not available? लास्ट क्या लाइन बोली आपने? कि कितनी बार इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू, जिनके थ्रू आपने करवाई है, वो फिर उसके बाद अवेलेबल होते नहीं है, मिलते नहीं है। So in that case, what are the things one should do if they want to change the insurance or add something to the insurance? Yes, this is very common problem. This is called porting of policy. Port. This is called porting of policy. Suppose मेरी पॉलिसी 3 लाख रुपए की थी। पहले हम दो तरीके से पोर्ट हो सकती है पॉलिसी, दो तरीके से होती है। एक होता है सम एश्योर्ड को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, उनके पास एडिड फीचर्स नहीं है उसमें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम जब दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, जब हमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की तो 2 लाख रुपए मोर देन सफिशिएंट होता था। जैसे कि आज 5 साल पहले हमारे लिए सफिशिएंट था, लेकिन आज इन्फ्लेशन बढ़ने से मेरे पास तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, वो यूजुअली हम देखते हैं। एक है कि उनके पास वो एडिड फीचर नहीं है, अगर मैं उसको अमाउंट को बढ़ाता हूँ तो मुझे फोर्सफुली पोर्ट होना पड़ेगा। सेकंड है कि वो मेरे को अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, उनका टीपीए थर्ड पार्टी है। एक पॉइंट और भी बता देता हूँ, इंश्योरेंस जब भी लें तो ऐसा टीपीए देखें जिनका इन हाउस हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जिनका आउटसोर्स किया हुआ टीपीए होता है, उसमें क्या होता है कि उनका एक कॉल सेंटर होता है, वो लोग 10 कंपनीज का टीपीए संभाल रहे होते हैं, तो यूजुअली उनको एक कमीशन मिलता है रिजेक्ट करने का। जिनका इन हाउस टीपी होता है उनको अपनी साख होती है, उनका एक डेडिकेटेड टीम होती है जो आपके सारे क्लेम्स को सेटल करने के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। उनको ये नहीं होता कि यहाँ रिजेक्ट हो, क्योंकि उनकी कंपनी की पॉलिसी की जो नंबर ऑफ पॉलिसीज है वो साख पे लगी। अच्छा, अब आते हैं पोर्ट पर। पोर्ट इज वेरी इजी। हम एडवाइस करते हैं 1 महीना पहले पोर्ट करें। सपोज मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 31 जुलाई को, तो मुझे 30 जून को कोई एडवाइजर या किसी से मुझे पॉलिसी को जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सब एक बार वेरीफाई कर लें कि मुझे ये वाली पॉलिसी लेनी है, एडवाइजर असाइन कर लें, उसको अपनी पुरानी पॉलिसी के पेपर्स दे दें, और वो विद इन 1 डे, अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 1 ही दिन में पोर्ट हो जाती है। वो आपको नया प्रीमियम लिंक दे देगा। आप उसको बढ़ाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पे, यूजुअली 3 लाख से नीचे की पॉलिसी पोर्ट नहीं होती, कोई भी प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होती। गवर्नमेंट में जो कंपनीज हैं वो 3 लाख की पोर्ट करते हैं, बिलो 5 लाख सम एश्योर्ड पोर्ट नहीं होता। अगर आपकी 3 लाख की पॉलिसी है वो 5 लाख में पोर्ट हो जाएगी। दिल्ली में 3 लाख की पॉलिसी, अब कोई भी मतलब प्रोविजन इज देयर, अगर मैं अपने स्टाफ के लिए करना चाहता हूँ तो 1 लाख की पॉलिसी है मेडिक्लेम, लेकिन वो मेरे स्टाफ के लिए है। फैमिली फ्लोटर या ऐसी पॉलिसी 3 लाख की कंपनीज डोंट रिकमेंड, क्योंकि आपको रूम रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, आपकी को पेमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी, दे वोंट एडवाइस और दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि 3 लाख का पोर्ट हो। और इट्स वेरी इजी, कोई एजेंट की टेंशन नहीं है, आपको पुरानी पॉलिसी का पेपर देना है, ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना नहीं, वर्चुअल आप कीजिए, वो आपको पेमेंट लिंक भेजेगा, आपकी पॉलिसी 10 मिनट में जनरेट होकर आ जाएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि वो सर्विस नहीं दे रहा, आप कि मेरे को वो नाराज हो जाएगा या कुछ कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पोर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी और वेरी कॉमन पोर्टिंग। सो बेसिकली अगर हमें अगर किसी कंपनी में एडेड सर्विसेज लेनी है या नई कंपनी में जाना है, सो उनके इजी टू एक्सेस कॉल सेंटर्स या फोन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके कोई ना कोई सर्कल में एजेंट्स या एडवाइजर्स होंगे, यू कैन कांटेक्ट देम। अच्छा, क्योंकि जैसे कि हम तो कॉर्पोरेट में करते हैं, हमारे पास सारे हैं, कुछ एडवाइजर्स टिपिकली कुछ कंपनीज की एजेंसी उनके पास होती है, तो आप उन सबसे एक बार उनके कोड्स ले सकते हैं, फिर उनके फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड। तो आप वैसे पोर्टिंग 1 हफ्ता पहले भी हो जाती है, पर इट इज एडवाइजेबल कि आप 30 डेज पहले इसका प्रोसेस शुरू कर दें। पोर्टिंग 2 दिन पहले भी हो सकती है, पर वो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके पास रिस्क है कि उधर एक्सपायर हो गई। और एक और चीज, पॉलिसी को कभी एक्सपायर ना करें।
एक्सपायर इन द सेंस, अगर मेरी पॉलिसी 18 जुलाई आज एक्सपायर हो रही है तो उसका प्रीमियम 17 तारीख तक पे हो जाना चाहिए। अगर मेरी पॉलिसी ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है, इसमें ग्रेस पीरियड नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर ये पॉलिसी 19 तारीख को पे हुई, पॉलिसी तो हो जाएगी लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के जो मेरे एडिड एडवांटेज है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जब आप पोर्टिंग के प्रोसेस में हो तो आप ये ना करें कि एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में आप अपना नुकसान करते हैं। ये हमारे साथ केसेस होते हैं, तो ये आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बने कि मैं अब इसका बेनिफिट रोज पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ और पता लगे जो था उससे भी गवा दिया, फिर आपकी पॉलिसी नए से स्टार्ट होगी। ये हुआ है हमारे साथ। स्मार्ट लोग तो सभी जगह है, वो दिल्ली में भी है और हर एक के सर्कल में है, मेरे सर्कल में भी है। ठीक है, पोर्टिंग के लिए थोड़ा सा अवेयर रहे, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जितनी देर हमने बात करी इतनी देर में पोर्ट हो जाती है पॉलिसी। वाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अभी जैसे मेंशन भी किया पोर्टिंग को लेके कि दैट मिनिमम पॉलिसी वैल्यू शुड बी 3 लाख और मोर। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, मतलब हमें कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए? कोई लोग 1 लाख की लेते हैं, कोई 10 लाख की लेते हैं। सो हाउ टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी कवर, स्पेशली इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली। फर्स्ट, I am an individual, it is very cheap. For 5 lakh of policy, premium is hardly between 5,600 to 8,000 rupees for 5 lakh. Different companies with maximum advantages, maximum inclusions. If my family size is 2 adults, 2 kids, then budget and cover, both things matter. कैसे करेंगे? आपको मिनिमम जो, अगर 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे हैं तो मिनिमम 5 लाख का कवर आपको दिल्ली जैसे शहर में जरूर रहना चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए मेरा रूम रेंट कितना है। सबसे बड़ी क्या है, आप शेयरिंग रूम में नहीं जाओगे जहाँ 6 बेड लगे हैं और आप जाकर कहोगे और उसके बाद भी आप बिल पे कर रहे हो और उसमें भी आपको 30% देना पड़ रहा है, तो आप नहीं चाहोगे। हर किसी को चाहिए मुझे डबल शेयरिंग रूम मिल जाए या सिंगल शेयरिंग मिले। तो 5 लाख वाले में रूम रेंट की सीलिंग नहीं है, आईसीयू चार्जेस का इशू नहीं है। अदरवाइज आपका 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मींस उसमें 2% रहता है। अगर 3 लाख का है तो 6,000 रुपये मिलेगा आपको आईसीयू का। दिल्ली में कोई आईसीयू 6,000 रुपये में नहीं मिलता या 3,000 रुपये में बेड नहीं मिलता, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं आता, जब हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं मिनिमम एडवाइजेबल इज 5 लाख रुपीज इन दिल्ली जैसे शहर में। छोटे शहर में 5 लाख का वही प्रीमियम जो जैसे मैंने बताया वो सीधा 20-30% कम है, तो आप वहां भी 5 लाख लें, एडवाइजेबल तो यही है। उसके साथ अगर आपको बजट कंसीडर 5 लाख का टॉपअप परचेज कर लो, वो बहुत कम बजट में दोनों पर्पज सॉल्व कर देगा। 10 लाख के लिए मत जाओ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। और उसमें ये भी है कि नो क्लेम बोनस भी ऐड हो जाएगा, तो आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कवर नहीं है। अगले साल वो 6,25,000 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो रिफिल की ऑप्शन भी है उसके अंदर, तो 1 साल बाद वैसे ही बहुत फीचर्स ऐड हो जाते हैं जी। 5 लाख एडवाइजेबल है, ओके, बाकी बजट है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक्चुअली आई ऑलरेडी हैव द आंसर फॉर इट। मेरा आंसर था नीरज जी, बट आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन आउट टू यू कि हाउ टू सिलेक्ट आवर इंश्योरेंस एजेंट। हाउ टू सिलेक्ट आवर इंश्योरेंस एजेंट। तभी मैंने कहा इस सवाल का जवाब मेरे पास ऑलरेडी है कि यू डोंट हैव टू, नीरज जी, है ना? बट स्टिल ये सवाल आया है तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आपकी जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्लेम आया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत तभी पड़ती है पहले कि आपको वो पॉलिसी अच्छे से समझा दे, ठीक है, वो अप्रोचेबल हो, और थर्ड कि आपको वो कोई ऐसा फीचर छुपाए ना। मतलब इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको जिससे अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मेरे से इसने झूठ नहीं बोला और उसको नॉलेज है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन पॉलिसी लेने के लिए हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे इंडिया में क्या है कि ऑनलाइन में आप बहुत सारे फीचर्स को मिस कर जाते हैं, और इस वजह से आपको जब सर्विस लेनी है तो हर बार आपको कस्टमर, क्योंकि आपके पास कोई असाइंड एजेंट नहीं होता। जब भी आपको सर्विस की कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई एजेंट बीच में नहीं होता, कस्टमर केयर होता है, वो आपको बोलते हैं आप आ जाओ ऑनलाइन, इसीलिए एजेंट असाइंड है। एडवाइस सिर्फ इतनी है कि आप ऑनलाइन अवॉइड करें, जैसे कि
क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें एडिड हेल्थ इंश्योरेंस दे देती हैं, बैंक में मेरा अकाउंट है तो वो मेरे को इंश्योरेंस दे देता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जब एडवाइजर होता है जो वहां पर मुझे बैंकर दिया होता है वो बदल जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो, अभी मेरे साथ कल एक केस आया, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, उनकी 3 हेल्थ इंश्योरेंस दे रखी है। बताओ वो कैसे, हस्बैंड गया होगा उसको दे दी, सर मेरा टारगेट है, बीवी गई उसका अकाउंट है, बच्चों के साथ उसको अलग दे दी। मैंने कहा ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ होता है कि पति का अलग है, बीवी बच्चों का अलग, और 3 महीने के गैप से। तो ये मतलब वो बैंकर है, आप किसी समझदार बंदे से, बैंकर से आप एफडीज और बैंक के बारे में पूछें। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है किसी की शक्ल अच्छी है। मेरे आजकल बाल नहीं है तो मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मेरे पास नहीं आएंगे। ओके, एडवाइजर कोई खराब नहीं है, और कस्टमर केयर सर्विस हमेशा अवेलेबल है। थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है अदरवाइज ऑनलाइन, और ये बैंकर से थोड़ा बच के रहें, वो थोड़ा फीचर्स को गोलमोल कर देते हैं तो नुकसान हो जाता है। अदरवाइज पर्सनल एडवाइजर कभी नहीं करेगा, जो सर्विस इंडस्ट्री में होगा वो अच्छी सर्विस ही देगा। ग्रेट। एक और सवाल था कि हमारे काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, दे हैव अ एग्जिस्टिंग कवर जो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट होते हैं। सो फॉर देम व्हाट डू यू एडवाइज, दैट शुड दे टेक अ सेपरेट इंश्योरेंस? क्योंकि कई बार होता है कि गवर्नमेंट सर्टेन काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स जिसमें जाना है, इट्स नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्सन। सो क्या उन्हें इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर इफ दे कैन अफोर्ड। मैं बताता हूँ, मेरे घर पर दोनों तरह के, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, तो वी हैव CGHS कार्ड आल्सो, माय वाइफ इज इन दिल्ली गवर्नमेंट, तो हमारे पास DGHS कार्ड भी है, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है फैमिली फ्लोटर, 10 लाख रुपए का मेरे पास है। क्यों? पहले अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने इनके पैनल हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए अगर इफ यू कैन अफोर्ड आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि CGHS में भी जहां तक मेरी नॉलेज है परमिशंस लेनी पड़ती है। जैसे कि मेरे एक दोस्त के फादर हैं, उनका अभी हमें ऑपरेशन कराना था हर्निया का, मैक्स एम्पैनल्ड है नो डाउट, लेकिन उनको परमिशन के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ा, परमिशन लेने के बाद ऑपरेशन के लिए वहां पर दिया। तो अब कई हॉस्पिटल्स, जैसे कैलाश हॉस्पिटल नोएडा का CGHS एम्पैनलमेंट था, लेकिन उनका डिस्प्यूट हो गया, कुछ सरकारी उन्होंने एम्पैनलमेंट से हटा दिया। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? सपोज मैं रहता ही नोएडा में हूँ, 57 सेक्टर के पास रहता हूँ और CGHS पैनल है, अब मैं अपने फादर को इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं और थोड़ा लेके जाऊंगा, या मैंने अपने, तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और मैंने टॉप अप वाला जो ऑप्शन बताया वो बहुत आसान है, अगर आप 65 ईयर से नीचे हैं और अभी रिटायर हुए हैं तो आप वो ले लीजिए, एडिड एडवांटेज ही रहेगा। ऑफिस से रीइंबर्समेंट, हालांकि उनके लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स अब ऐड हो गए हैं, मेरे फादर ने भी नहीं लिया हुआ, उनका एक डिफरेंट है उनका, लेकिन एक अमाउंट सर्टेन है। लेकिन जो मेरे वाइफ का कार्ड है उसमें हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा आपको पता है वो गवर्नमेंट की जो तरीके होते हैं, कैशलेस नहीं है तो परमिशन लेके आओ। इफ यू कैन अफोर्ड आई विल एडवाइज कि आप ले लें। ग्रेट। और अभी सवाल हमारे पास और आए नहीं है। सो पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके पास और कोई सवाल है नीरज जी से पूछने के लिए, प्लीज आप या तो अनम्यूट करके खुद सवाल पूछें या चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें जैसे अब तक भेजा है, एंड आई विल बी हैप्पी टू आस्क दोस क्वेश्चंस फ्रॉम नीरज जी। वैसे आपने बहुत सारी बातें जो नीरज जी बताई वो आई थिंक काफी हद तक क्वेश्चंस अब उठने नहीं देगा, क्योंकि वो एरियाज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है। आपने इतने अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आई गेस दैट हैज आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड इनफैक्ट बहुत लोगों को नई नई चीजें जानकारी और नई चीजें पता चली हैं, तो वो पहले दिमाग में होता है कि उसको डाइजेस्ट कर लें। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, राशि, वो वीडियो प्ले कर सकते हैं कि जैसे आज ही एक न्यूज देख रहे थे हम कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है और वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ, आप पहले वीडियो देख लीजिए कि इस वीडियो का मतलब समझाता हूँ कि क्यों होने वाला है ऐसा। लोग बोलते हैं कि जी बिल्कुल, मैं आज का ही न्यूज का था ये वीडियो। हाँ जी, बिल्कुल कर रही हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? और एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है, इसी वक्त ले लीजिए, क्योंकि
खबर ये है कि आने वाले कुछ महीनों में हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जी हाँ, और ये इंश्योरेंस का प्रीमियम 20% तक बढ़ सकता है। ये 13 जुलाई की न्यूज है और आज हम देख रहे थे न्यूज में, तो ये मेरे को वीडियो मिला तो मैंने राशि दे दिया। देखिए 20% इज ए ह्यूज अमाउंट। अगर हम सोच रहे हैं वो क्यों हो रहा है, मैं इस पर भी आपको बता देता हूँ कि 20% हम सुनते आ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इनकी और ये करना चाहते हैं कि जान के बोल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, कोविड की वजह से, जैसे कि कोविड की वजह से इनको प्रीमियम और कम आए हैं, लोगों ने पॉलिसी डिसकंटिन्यू बहुत की है, नई भी बहुत आई है, लेकिन क्लेम बहुत ज्यादा आए हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो करती है कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस वाली, उनको लॉसेज हुए हैं, टू रिकवर दैट लॉसेज वो अपने प्रीमियम्स बढ़ाएंगे। प्लस जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ अवेयर हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि हम इसका फायदा उठाएं और 20% अगर बढ़ा कर देंगे, मरता क्या ना करता, खरीदेगा बंदा। क्योंकि अगर 5 लाख का प्रीमियम इंश्योरेंस मुझे फैमिली के लिए, अगर टोटलिटी देखूं 20 लाख का कवर मुझे जो 18,000 का मिल रहा था, मैं अपनी फैमिली के लिए 21,000 का भी खरीदूंगा, 22 का भी खरीदूंगा। अगर मैंने ये माइंड मेकअप कर लिया, गाड़ी महंगी कर दे मारुति तब भी मैं खरीदूंगा, कोई गाड़ी महंगी हो जाए, अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए लेनी है तो। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसको खरीदनी है, इसको ये पसंद है, ये हेल्थ इंश्योरेंस लेगा तो इसको महंगा करके बेच। तो इसीलिए ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो बोल यही रहे हैं कि हमें लॉसेस हुए हैं। उनसे ये पूछो जो 15 साल से लोग प्रीमियम दे रहे हैं, क्लेम नहीं लिया, तो उनको कौन सा तुमने गिफ्ट कार्ड दे दिया कि चल 10 साल तक बीमार होगा और मैं तुझे कुछ नहीं चार्ज करूंगा, ये ले। ऐसा ही होता है ना, लोग बोलते हैं ले आज तक 10 साल से प्रीमियम दे रहा हूँ, बीमार तो हुआ नहीं, किस बात का मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराऊं। उसको किसी ने एडिड एडवांटेज तो नहीं दिया ना, किसी कंपनी ने। आज उनसे क्लेम्स लेने की बारी आई तो वो प्रीमियम बढ़ाने लगे हैं। आपको वो कवर में ही तो इंक्लूजन देते हैं, डिस्काउंट प्रीमियम में तो नहीं देते ना। प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, या तो बोले कि हम 20% एडिड एडवांटेज देंगे सम एश्योर्ड का। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर डिसीजन लेना है, इससे पहले ये हम इनके उसमें आ जाएं और एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े तो ये डिसीजन ले लें। अदरवाइज ये नेसेसिटी है, आज नहीं लेंगे 2 साल बाद लेंगे, हमें लेना ही पड़ेगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेडिकल एक्सपेंसेस दिल्ली में रहते हुए। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। मैं वही देख रही थी और कोई अभी तक सवाल आए नहीं हैं, तो आई विल नाउ हैंड ओवर टू मनीषा जी कि वो अगर कोई बात अपनी शेयर करना चाहें एंड कुछ अपने थॉट्स शेयर करें प्लीज। Thank you, Rashi, and thank you so much, Neeraj ji, and along with you all, जितने भी participants हैं थे और कुछ चले गए, उन सबको मैं उनके जाने के बाद भी उन्हें थैंक्स कर रही हूँ। और फेसबुक पे भी काफी सारे हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो भी एक चीज है। तो उन सबको जो हमें जिस भी तरह से अभी देख रहे हैं या सेशन के बाद देखेंगे, उन सबको मैं पहले तो थैंक्स करती हूँ। एंड खास तौर पर नीरज जी आपको, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत इंसान को पड़ती ही है। और कहते भी हैं कि हमें रुपया पैसा हर चीज से ज्यादा सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ गई तो फिर सभी कुछ गया एक तरह से। सो हैविंग सेड दैट एंड मेकिंग द मासेस अवेयर कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर एल्डरली के लिए। और इंश्योरेंस के बारे में मुझे ना बचपन की एक बात याद आती है कि मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनके पास एक बक्सा था और वो बक्सा बंद रहता था, उसमें ताला लगा रहता था। सो एवरीवन हैड अ फील कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, और सब लोग उनकी बहुत सेवा वगैरह करते थे। तो अब जब बाद में वो गुजर गई तो वो खोल के देखा गया तो उसमें से ये लिखा हुआ कागज निकला कि अगर तुम सेवा करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है ये एक इंश्योरेंस भी है जो आपको एक ऐसा कवर दे रहा है जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ खड़ा है। चाहे आपने हंस के प्रीमियम दिया, चाहे आपने रो के दिया, बट पॉइंट इज कि देयर इज समवन टू लुक आफ्टर in any case, in any problem, health problem of your life। और दूसरा जो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जिसको एक्चुअली मैंने नहीं सुना था, राशि तो ऑलरेडी कह भी चुकी है, कि आपने एक वर्चुअल बेटा बेटी हर उस बुजुर्ग के लिए प्रपोज करा दिए हैं जो कि अपने ओरिजिनल बेटा बेटी से दूर है, और उन्हें एक व्यक्ति चाहिए जो उन्हें बता सके कि आप
थायराइड टेस्ट करा लो, 3 महीने पे कराना है, आपको हीमोग्लोबिन कराना है, आपको ब्लू रिबन चेक कराना है, ये इतना टाइम गुजर गया, और ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल टेस्ट होते होंगे जो कि मैंडेटरी हैं बुजुर्गों के लिए, पर उन्हें याद नहीं रहता। और जो बच्चे दूर हैं वो दूर रह करके शायद इस तरह से उनके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते, चाह करके भी। तो ये जो आपने एक बात बताई है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो खुद अपने पेरेंट्स से कहूंगी कि इस तरह की हमें कुछ एक सोच रखनी चाहिए, और वो सब लोग जो अपने बच्चों से दूर हैं या वो बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर हैं, उन्हें इस तरह की कोई अरेंजमेंट जरूर बनानी चाहिए कि अगर वो खुद नहीं तो कोई और तो है जो बड़ों का ध्यान रख रहा है, जो बड़ों को याद दिला रहा है। और जो आपने वीडियो शेयर की, दैट वाज अमेजिंग, एंड आई कंसिडर कि इट वाज वेरी मच एनलाइटनिंग टू ऑल ऑफ अस। और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर सच थिंग्स, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेशन बड़ों के पास पहुंचे, क्योंकि उनको भी ये बातें सुनकर एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। हर बात के लिए शायद वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रह भी नहीं सकते और रहना चाहते भी नहीं। ये भी उनकी एक थॉट होती है कि हम बच्चों को तंग क्यों करें, वो वैसे ही बहुत सारी आजकल की फास्ट लाइफ है उसमें काफी हद तक उलझे होंगे, तो दे डोंट वांट टू बॉदर यू फॉर एनीथिंग। सो अगर वो कह नहीं रहे तो कम से कम कोई तो ऐसा हो जिसे वो खुल के कह सके, yes. है ना। तो ये जो आपने इंश्योरेंस की बहुत सारी बारीकियां बताई और उसमें ये जो एक टॉपअप आपने दिया है ये बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा नहीं कहीं पर, मेरी नजर से स्लिप होता रहा, बट आपने जिस तरह से बताया है, और मुझे उम्मीद है सेशन और जो फेसबुक पे चल रहा है वो जो कि बाद में भी अवेलेबल रहेगा, ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचेगी और बहुत लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगी। सो मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगी, हम बातें बहुत देर तक कर सकते हैं, but again I would like to just wind up and give an opportunity to people who were there with us and who will be there with us in due course of time after watching the Facebook thing of ours. They will actually go and concentrate and think what best they can reap out of your conversation. आपने जो बताया उसको वो कितना अप्लाई कर सकते हैं, कितना उसे सीख सकते हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें उन लोगों को समझ में आएंगी। और मुझे लगता है इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन एंड आई थैंक यू सो मच नीरज जी, इट वाज ग्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैव more of information from you in days to come. Thanks a lot. Thank you Rashi, thank you all who are there with us. Thank you. बुजुर्गों के लिए एक चीज और मैं जी करना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे पास जितने एल्डरली पीपल हैं उनके पास ऑब्वियसली सेविंग्स हैं या अपनी पेंशन पर है। हमारे एक एनजीओ से मैं और जुड़ा हूं जो गुरुद्वारे की एनजीओ है, उन्होंने 2 दिन पहले एक केमिस्ट शॉप ओपन की है ड्यू टू कोविड। उस पर वो कॉस्ट टू कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज इन लाजपत नगर, 2 दिन पहले ओपनिंग हुई है। तो जो नॉर्मल मेडिसिन आप लेते हैं उससे 35% कम प्राइस, मतलब जो एक्चुअल परचेज प्राइस है उसी पर दे रहे हैं, नो प्रॉफिट। तो ये भी बहुत एडिड फीचर है। और अगर किसी बुजुर्ग को लेनी है तो दे कैन प्रोवाइड होम सर्विस ऑल्सो, लेकिन वो कुछ एरिया रेडियस के अंदर है। इट इज इन लाजपत नगर। तो ये भी बहुत बड़ी सेविंग है क्योंकि हर बुजुर्ग को एक मेडिसिन का एक अमाउंट होता है। नॉर्मली एक केमिस्ट शॉप हमें 10 to 15% का डिस्काउंट, लेकिन 30% तक डिस्काउंट इज ए ह्यूज अमाउंट उनके मंथली बिल पर। ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? लाजपत नगर बस में गुरुद्वारा है, उसी में उन्हीं गुरुद्वारे के अंदर ही है। तो अभी 2 दिन पहले ओपनिंग हुई है, उन्हीं की जो प्रबंधक कमेटी है उन्होंने ही ओपन की है और सभी उसमें वॉलंटियर्स हैं जो उसमें कर रहे हैं काम। और मेडिसिन बिल्कुल जो प्राइस, क्योंकि उसका जीएसटी मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जितने की आ रही है उतने की दे रहे हैं। तो ये देखिए, अगर किसी का बुजुर्ग का मेडिसिन का बिल अगर 2000 रुपये, अगर उसको 500-600 रुपये बच जाए तो इससे नथिंग लाइक दैट। और बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी है, मतलब उसमें 2 दिन में ऑपरेशनल और हो जाएगी 100%। तो सभी अगर वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है दे विल अरेंज और वो आपको करके देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको अवेलेबल नहीं है, ये मेडिसिन हम नहीं देंगे, पूरे दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर से अरेंज करके देंगे। तो बहुत एडवांटेज है बुजुर्गों के लिए, बहुत अच्छा, उनके बजट को ये बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया नीरज जी। इनफैक्ट मैं यही सोच रही थी कि हम कहीं भी किसी स्टेज ऑफ लाइफ में हो और हमें नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिले तो वो हमें एम्पावर करती है। सो आपने जो हमारे साथ आज शेयर किया वाज अमेजिंग नॉलेज एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प ऑल आवर व्यूअर्स अ लॉट टुडे।
and talking about helping each other. So thank you very much, Neeraj ji. I am sure अगर किसी की और query होंगी, you will be always ready to provide them the requisite support. So we will touch base in case any of you want to get in touch with Neeraj ji. Let us know. We will be happy to connect you with him. Going forward also we are going to continue this, and हम अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं. And एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हम जब इतनी सारी चीजों से, हेल्थ रिलेटेड चीजों से जूझ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें एक स्ट्रेस देती है, एक मेंटल टेंशन देती है. नाउ अगर ऐसा हो और मैं ये कहूं कि हमारे पास अगले टाइम एक साइकोलॉजिस्ट होंगे जो हमें मेंटल स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे. So that is what is going to be the topic for our next session, which is going to be on 1st August. Details हम आपके साथ share करेंगे over the email. आपको सारी details आ जाएंगे, and we will be happy to have you for that session too. So thank you very much. Thanks you once again, Neeraj ji, for such an amazing session. Thank you. so सभी बुजुर्गों को thank you. Thank you so much, Neeraj ji. Thanks a lot.